Yes. Good afternoon, students. Okay, now today your practical session, but today we will learn theory only because we will start the practical in the next week. Okay, because topics, when some topics will be covered, then we will start. Okay, this is your practical list. Okay, you will find this practical list in your syllabus also. Okay, so there are total how many practicals? 10 practicals are there. Okay, in the DBMS there are total 10 practicals. Okay, the first one is SQL statements 1. SQL statements 1, writing basic SQL statement, sorting data, restricting single row functions and statement on multiple tables, displaying data from tables. Okay, so we will start the practical in the next week. Okay, because first of all we have clear our concepts about the database, what is database. Okay, then the advantages, disadvantages of database, architecture of database, then we will learn about SQL, then we will start our practicals. Okay, so we will start practical from the next week. So in this lecture today we will continue with our theory. Clear? Okay, so this is your practical list. When we will start, I will explain every practical in detail. Okay, right. So today we will learn theory only. Okay. Yes, in the last lecture, we had started our brief description about the database management system. Okay. These topics we had covered: what is data, database management system, components of DBMS, and application of DBMS. Okay. These 5 topics we had covered in the last lecture. Okay. What is data? Who will tell what is data in one line? What is data? Data is a raw fact. Yes, data is a raw facts. Okay, yes, good. Give me some example of the data. Give me some example of data. Student information, address, roll number. Yes. Okay, good. Address, roll number. Okay, then phone number, email ID. Individually, when we gather the data from student, then it's called the data. Okay, height, weight. Okay, all are the data. Then what is information? Yes, ये भी आपको पता. You know what is information. जल्दी से बता दो मुझे what is information. Data process is called information. Okay, when we processed on the data, we will get some useful information. It's called the information. Yes, processing on the data. Okay, when we are processing on the data, we are getting in detailed data. It's called the information. Okay, very good. What is database? What is database? Yes. What is database? We will tell. We will give the answer. What is database? जैसे आ रहा है वैसे. So I don't want perfect definition. ठीक है, perfect definition नहीं चाहिए मुझे. Okay. To store the data, systematic way of storing data. Okay. So database System is for a, storing, organizing, updating, and removing the data. it's called the database management system. Okay, database means kya? Organized. Okay, organized collection of the organized data. ठीक है, या or we can organize the data in systematic way. It's called the database. Okay, structured data को जब हम organize करेंगे, that it will become the database. Okay, database मतलब we will store the information but in organized manner. कैसे manner में हम लोग data store करेंगे? Organized manner में. For example, for our college, if we consider our college database, ठीक है, अगर हम लोग college का database consider करें, in that database first we will create the folder, or we will create the database for the IT department. Okay, in the IT department, for the IT department database, we will create the 3 tables. First table is for FY, second is SY, then third is TY. Then we will create another table from the BCom. In the BCom folder, in the BCom database, we will store the information about the FY BCom student, SY BCom student, and TY BCom student. Okay, means what we are doing, we are storing the data, but in a structured manner, in organized manner. Okay, हम लोग डेटा स्टोर करें बट प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में. हम लोग जब डेटा स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस. ओके,
The database is an organized collection of structured data. Okay, organized collection. Data तो collect करना, data store करना, but कैसे करना? Proper organized way में. ऐसे नहीं है कि एक ही table हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लोग सारा data store कर रहे हैं, सारे students का एक साथ data store कर रहे हैं. It is difficult to find out which student belongs to which department. Okay, so हम लोग क्या करेंगे? We will make the different folders for different department. Then in that folder we will create again the classes wise, and then according to that classes wise we will store the data. If first student is in another one table, as first student data is in another table, वैसे हम लोग store करेंगे data. It is called the database. Okay, and database management system. Okay, database management system means it is a systematic way of storing, organizing, updating and removing the data. Okay, it is a software. DBMS is a software for storing the data, for managing the data. We have the different softwares like SQL, Oracle, FoxPro, MySQL. Okay, in our syllabus, according to our syllabus, we will use MySQL in our practical. Okay, we will download the MySQL from the internet. Then we will do the practical in the MySQL software. Okay, you can download. If you want to download, then you can download. It is easily available on the internet. Otherwise, I will give. ठीक है, मैं भी आपको provide कर दूंगी in the Google Classroom में. ठीक है, so this is a database management system. Okay. Yes, next components of DBMS. These are the components: data, hardware, software, user, procedure. These are the main components of DBMS. Okay, for using the DBMS, or if you want to store the data in DBMS software, then uh, um, you have to know about these components. Okay, what is data, what is hardware, what is software, what is user, procedure. If one of the component is missing, that you cannot use your database. Okay, you have to know about all these components and you have to acquire all these components. Okay, you know, data, hardware, software, users and procedures. Next is the applications of DBMS. These are the applications. Okay, applications means where we can use the database. Okay, where we can use the database, called the applications of DBMS. So here some real-time applications are given. This is the some given. You can write at your own. For more application you can write. Okay, banking, airline, finance, sales, HR. These are the some examples are given. अब ऐसे नहीं है कि इतना में ही हम लोग डेटाबेस यूज कर सकते हैं. एनी जहाँ पे भी डेटा स्टोर करने की जरूरत है, वी कैन यूज द डेटाबेस. यूनिवर्सिटी में भी हम लोग डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, कॉलेजेस में भी हम लोग डेटाबेस यूज कर सकते हैं. ठीक है. Yes. Now advantages of DBMS. Okay, advantages of DBMS. Okay, before the DBMS, as I told you in the previous lecture, before the DBMS, the data are stored in the files, different types of files. Okay, for example, Excel file, Word file, or any other type of file. In that files, we were storing the data. Okay, but there are some disadvantages of that file system. So to overcome that disadvantages of file system, DBMS is invented. Okay, now all of you are using the DBMS currently in the market. ठीक है ना, अभी सब लोग क्या यूज करते हैं, DBMS यूज करते हैं. Now files भी यूज करते हैं, there are some disadvantages files का disadvantages available है files का. Okay, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल शीट. ठीक है, एक्सेल शीट आप लोग यू कैन क्रिएट योर एक्सेल शीट फॉर स्टोरिंग सम डेटा. ओके, डेटा स्टोर करने के लिए आप एक्सेल शीट यूज कर सकते हो, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. यू कैन ऐड मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा. ओके, अगर आप आपका नाम 2 बार उसमें इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, तो दैट इज क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन. ओके, देन देयर इज नो सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी नहीं एक्सेल शीट में, यू कैन नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी इन एक्सेल शीट. ओके, तो देयर आर सम डिसएडवांटेज अवेलेबल है, तो उसको ओवरकम करने के लिए डीबीएमएस को इन्वेंट किया है. तो डीबीएमएस हैज एडवांटेजेस. ओके, बहुत अलग अलग एडवांटेजेस है. The first advantage of DBMS is reducing data redundancy. The first advantage क्या है, reducing data redundancy. Yes, what is the meaning of redundancy? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. What is the meaning of redundancy? Error correction. No, error correction नहीं. Redundancy means duplication. Okay, redundancy means duplication. Okay, data duplication. Okay, क्या यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, DBMS has many advantages as follow. The first advantage क्या है, reducing data redundancy. Data redundancy means duplication.
ओके, डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन। डेटा डुप्लीकेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। ओके, मीन्स वी कैन नॉट स्टोर दी डुप्लीकेट डेटा। ओके, मतलब वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है इन दी डीबीएमएस में, माई एसक्यूएल में, के थ्रू विच वी कैन स्टोर यूनिक डेटा। हम लोग यूनिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। डुप्लीकेट डेटा बेटर है कि यूनिक डेटा बेटर है? डेटा कैसे होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए कि यूनिक होना चाहिए? यूनिक। यूनिक होना चाहिए ऑब्वियसली। ओके, अगर आपका जो रोल नंबर है, अगर बार बार हम लोग फाइल में 2 स्टूडेंट्स का 4 टाइम्स एंट्री करें तो नो, इट इज रिडंडेंसी, डुप्लीकेशंस। ओके, तो ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द डुप्लीकेशन। ओके, बट इन द एक्सेल फाइल या तो वर्ड फाइल में व्हेन वी आर स्टोरिंग द डेटा, तो क्या हो रहा है, अगर आपका नेम 4 टाइम्स भी डालोगे, 10 टाइम्स भी डालोगे, तो वहाँ पे कोई आपको ऐसा बोलेगा नहीं, एक्सेल में कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि नो यू कैन नॉट एंटर, उसमें ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, बट वो उसका डिसएडवांटेज है, उसको हमने रिकवर किया इन दी डीबीएमएस में। ओके, तो डीबीएमएस हैज प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। रिड्यूस करे, उसको रीड प्रॉपरली रीड करो, रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल है। ओके, कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल कैसे करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। देयर आर कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल है कि थ्रू विच वी कैन एंटर ओनली यूनिक डेटा। प्राइमरी की अवेलेबल है थ्रू विच वी कैन एंटर यूनिक डेटा। ओके, वैसे बहुत सारा है, नॉट नन है, बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल है कि थ्रू विच वी कैन एंटर यूनिक डेटा इन दी डीबीएमएस। ओके, तो अभी के लिए याद रखो, दिस इज अ फर्स्ट एडवांटेज कि रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। ओके, डुप्लीकेशन डीबीएमएस में नहीं होता। अनदर कोई फाइल में आप डेटा स्टोर करें तो उसमें पॉसिबिलिटी है, बट डीबीएमएस में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दैट इज अ एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ओके, नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डेटा। इट इज अ एडवांटेज, शेयरिंग ऑफ डेटा। वी कैन शेयर दी डेटा। ओके, जो हम एसक्यूएल में जो हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे या तो जो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, वी कैन शेयर दैट डेटा। हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल वेज अवेलेबल है कि थ्रू विच वी कैन शेयर दी डेटा। जब प्रैक्टिकल्स करेंगे ये सारी चीज़ें, ये जो एडवांटेजेस आपको याद रखना है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी एट द टाइम आई विल आस्क यू कि ये एडवांटेज है, तो उसको इसके लिए ये हम लोग प्रैक्टिकल पॉसिबल है। हर एक जो एडवांटेज उसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, रिडंडेंसी के लिए वी हैव द कंस्ट्रेंट। ओके, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। शेयरिंग ऑफ डेटा के लिए हमारे पास है कि हाउ टू शेयर द डेटा। ओके, हर एक के लिए प्रैक्टिकल्स हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एडवांटेज इज डेटा इंटीग्रिटी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। किसी को याद है इंटीग्रिटी? करेक्ट डेटा। करेक्ट डेटा, वेरी गुड। ओके, डेटा डेटाबेस में ऑलवेज कैसे होना चाहिए, करेक्ट डेटा स्टोर होना चाहिए। अगर आप लोग ट्राई करके देखो, एक्सेल में आपका फोन नंबर के लिए आपने कॉलम बनाया, एंड अगर आप उसमें 11 डिजिट का फोन नंबर डाल दो तो भी उसको कुछ एक्सेल को फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट इंटीमेट यू कि यू आर एंटरिंग रॉन्ग फोन नंबर, ऐसा आपको कुछ मैसेज नहीं आएगा। बट इन दी डीबीएमएस में जब आप लोग आपका फोन नंबर एंटर करोगे, ठीक है, व्हेन यू आर एंटरिंग द फोन नंबर, अगर आप 11 डिजिट डाल रहे हो या तो 9 डाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको क्या करेगा, मैसेज देगा, नो इट इज रॉन्ग, प्लीज एंटर दी 10 डिजिट। तो उसके लिए भी हमारे पास है। ठीक है, ये कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे करेक्ट डेटा स्टोर करना है, वो भी प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। तो डेटा इंटीग्रिटी इज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के वी कैन स्टोर करेक्ट डेटा इन दी डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि जो डेटा एंटर कर रहा है यूजर, वो भी कैसे होगा, वैलिड ही होगा। अगर इफ एनी यूजर एंटरिंग रॉन्ग डेटा, तो इट विल बी डीबीएमएस विल डिस्प्ले द मैसेज कि नो प्लीज एंटर द करेक्ट डेटा। वो आपको डेटा रॉन्ग डेटा स्टोर करना ही नहीं देगा। तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब करेक्ट डेटा विल बी स्टोर्ड इन डीबीएमएस। द नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी। जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी आके उसको यूज करेगा, नो। ओके, सिक्योरिटी आर देयर, सिक्योरिटी आप provided by the DBMS. Only authenticate users और authenticate persons can access the data. जिसको हमने authenticate किया है, जिसको हमने permission दिया है, वही DBMS में data access कर सकता है। कोई भी आके database यूज करेगा ऐसा possible नहीं है। ठीक है, तो जो हाउ टू एक्सेस दिस, हाउ टू अप्लाई दिस सिक्योरिटी, या तो उसको सिक्योरिटी कैसे असाइन करना है, वो भी प्रैक्टिकली हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे जब प्रैक्टिकल कराऊंगे, तब मैं आपको बोलूंगी यस कि ये हमने एडवांटेजेस देखा तो उसका हम लोग ऐसे फुलफिल हो रहा है डीबीएमएस में। तो हर डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो डेटा सिक्योरिटी मतलब क्या, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर, ऑथोराइज मतलब क्या, जिसको परमिशन दिया है। ओके, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस। कोई भी आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वैसा फैसिलिटी अवेलेबल है। Now data consistency. Okay, what is the meaning of consistency? What is the meaning of consistency? मतलब क्या याद है किसी को?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंस मतलब क्या? मैम डाटा स्टोर होते रहे, मतलब कोई रुके ना कहीं। नो। ओके, कंसिस्टेंसी मतलब क्या? सेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईटी स्टूडेंट्स का डेटा हमने स्टोर किया है आईटी डेटाबेस में, ठीक है, आईटी एफवाईआईटी का डेटा जो है वी आर स्टोरिंग द एफवाईआईटी या तो एसवाई, अभी नाउ यू आर इन द एसवाई। तो एसवाईआईटी का जो डेटा है हमने एसवाईआईटी के टेबल में स्टोर किया है कि जिसमें हर एक स्टूडेंट्स का फोन नंबर, आईडी, नेम, ठीक है, पूरा डिटेल्स वी हैव स्टोर्ड इन द एसवाई टेबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल एसवाई स्टूडेंट का कोई एसवाईआईटी का कोई स्टूडेंट है जो कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करे, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल ले लो तो कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो वो स्टूडेंट का डेटा जो होगा वो कहाँ पे होगा? इवेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट जो कर रहा है, ठीक है, वो भी क्या करेंगे कि वो भी इवेंट का टेबल बना रहे हैं, इवेंट के लिए डेटाबेस क्रिएट करें, ठीक है। तो इवेंट के टेबल में फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है क्लास, उसने पार्टिसिपेट किया तो उसका डेटा क्या कहाँ पे होगा? आईटी एसवाईटी के क्लास में भी होगा, प्लस इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया तो जो इवेंट में पार्टिसिपेट किया उसके टेबल में भी होगा। ओके, तो दोनों जगह पे एसवाईटी का स्टूडेंट है, उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर है दोनों टेबल में। तो दोनों टेबल में इन्फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए? दोनों टेबल में वो स्टूडेंट का नेम, फोन नंबर, एड्रेस कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? यस, कैसे होना चाहिए? दोनों टेबल में यूजर का एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल कौन है आपके क्लास में? ओके, फॉर एग्जांपल अनिल है, ठीक है, अनिल का एंट्री मैंने हमारे आईटी के डेटाबेस में भी किया है, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका फोन नंबर मैंने डाला हुआ है, ठीक है। वही अनिल जो है वो पार्टिसिपेट करा है, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करा है, तो उसका जो डेटा एंट्री है वो इवेंट के टेबल में भी है, तो उस वहाँ पे इवेंट के टेबल में अनिल का नेम, फोन नंबर, आईडी कैसे होना चाहिए? कैसे होगा बताओ? सेम। ओके, सेम। ओके, तो वो क्या हो गया? कंसिस्टेंस। अगर हम लोग एक ही स्टूडेंट का मल्टीपल टेबल्स में एंट्री कर रहे हैं, मल्टीपल डेटाबेस में उस स्टूडेंट का एंट्री है, तो वो स्टूडेंट का एंट्री मल्टीपल टेबल्स में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मल्टीपल टेबल्स बोलो, एक ही टेबल में दो स्टूडेंट का नेम सेम होना चाहिए वो नहीं बोलो, मल्टीपल, इन द मल्टीपल टेबल्स जो स्टूडेंट्स का डेटा हम लोग स्टोर करें, इन द मल्टीपल, उसका जो कॉपीज है उसमें क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अनिल का नेम, फोन नंबर, आईडी सेम होना चाहिए जो आईटी के टेबल में है, तो इट्स कॉल्ड द डेटा कंसिस्टेंसी। उसको क्या बोलते हैं? डेटा कंसिस्टेंसी। इफ देयर आर मल्टीपल कॉपीज, ओके, मल्टीपल कॉपीज बोली मैं, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, इट शुड बी सेम। वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? फॉरेन की यूज करके हम लोग वो जो ये कंसिस्टेंसी है, वी कैन अप्लाई द कंसिस्टेंसी यूजिंग द फॉरेन की। हमारे पास फॉरेन की करके एक कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंस मतलब क्या? मल्टीपल कॉपीज। आई एम यूजिंग द वर्ड मल्टीपल कॉपीज, और यहाँ पे जो हमने देखा दैट इज रिडंडेंसी। दोनों में डिफरेंस है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या? डुप्लीकेशन। एक ही टेबल में एक ही स्टूडेंट का नाम 3 to 4 टाइम्स आ रहा है, दैट्स कॉल्ड दी डेटा रिडंडेंसी। वो डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, वो डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। हाँ, बट डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स क्या? कि एक स्टूडेंट का नेम जो है वो मल्टीपल जगह पे है, मल्टीपल कॉपीज में है, मल्टीपल टेबल्स में एक ही स्टूडेंट का नेम, तो इट शुड बी सेम। इट्स कॉल्ड दी डेटा कंसिस्टेंसी। ओके, तो डिफरेंस है, तो प्लीज उसको कंसेप्ट क्लियर रखना कि डेटा रिडंडेंसीज अलग है, डेटा कंसिस्टेंसी अलग है। So these facilities also provided by the DBMS. It is the advantage of DBMS. Data consistency. Clear? Yes or no? Data consistency. Yes. Okay. तो डेटा कंसिस्टेंसी है वो हम लोग अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। फॉरेन की एक है, उसके थ्रू। व्हाट इज फॉरेन की मैं एक्सप्लेन करूंगी, तब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। डेटा रिडंडेंसी जो है, यूनिक डेटा स्टोर होना चाहिए उसके पास, हमारे पास प्राइमरी की है, हर एक चीज के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली अवेलेबल है जो हम लोग परफॉर्म करेंगे। यस, द नेक्स्ट लास्ट एडवांटेज इज बैकअप एंड रिकवरी। जब हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस हैज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। वी कैन टेक द बैकअप ऑफ आवर डेटा, जो टेबल्स जो हमने बनाया है, ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का हम लोग स्टोर करें, जो डेटाबेसेस व्हिच वी हैव क्रिएटेड, वी कैन टेक द बैकअप ऑफ दैट डेटाबेस, ऑफ दैट टेबल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका डेटाबेस का जो बैकअप है वो हम लोग ले सकते हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कैटलॉग्स अवेलेबल है, उसमें भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी अवेलेबल है थ्रू विच वी कैन
take the backup of our data and databases and recovery. If कोई प्रॉब्लम्स आया या तो डेटाबेस करप्ट हो गया या तो डेटाबेस ओपन नहीं हुआ, इफ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया, तो वी कैन ऑल्सो रिकवर दैट डेटा, हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है. ओके, वो भी वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है बाय द डीबीएमएस. तो ऑल दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस. यू शुड नो, ओके, यू शुड रिमेंबर all these advantages with its meanings. MCQ में मैं क्वेश्चन डालूंगी, व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, तो यू शुड नो. ओके, डेटा रिडंडेंसी क्या है, डेटा शेयरिंग ऑफ डेटा, इट्स इजी. शेयरिंग ऑफ डेटा में कुछ ना वो है नहीं, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी, ये जो 3 है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके, क्लियर ना. अभी इसमें किसी को डाउट है, कोई एडवांटेज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ड, कोई न्यू वर्ड है कि जो आपको नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, कोई कंसेप्ट इसमें से, ये स्लाइड में से है कोई ऐसा, यू कैन आस्क. ओके, नाउ अभी ये जैसे जैसे न्यू सेमेस्टर्स में जाओगे वैसे वैसे न्यू टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, तो आपको उसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. नोट डाउन करते जाओ प्लीज़. कम विथ योर नोटबुक एंड पेन इन माय लेक्चर. ओके, नोटबुक लेके आया करो, कुछ जो मैं बोलूँ उसको न्यू वर्ड्स जो है उसको एक लाइन्स में नोट डाउन करते जाओ. मैं हर एक लेक्चर्स में ये रिपीट करती हूँ क्योंकि न्यू वर्ड्स है ये, रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, ऑल आर द न्यू वर्ड्स फॉर या, ठीक है, तो आप उसको प्लीज नोट डाउन करते जाओ. एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया देन कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो स्टार्टिंग जो है थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए नोट डाउन करके रखो. यस, द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. एवरीथिंग हैज एडवांटेजेस है तो उसका अपोजिट साइड है तो उसका डिसएडवांटेज भी है. कोई भी चीज ले लो, प्रैक्टिकली ले लो, ऐसे ही ले लो, या तो रियल लाइफ में भी जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं, हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर, कोई भी, उसका एडवांटेजेस भी है प्लस सामने डिसएडवांटेजेस भी है. ऐसे नहीं कि कोई फुल्ली 100% तो अच्छा होता ही नहीं है कोई भी चीज. ओके, डेली लाइफ का ले लो या तो फिर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर ले लो, कोई हार्डवेयर ले लो, कोई भी आप मोबाइल्स भी ले लो, तो हर एक का किसी ना किसी एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी. तो सेम डीबीएमएस may offer plenty of advantages but it has certain flaws. Okay, certain disadvantages, उसके cons भी है. अगर advantages है, प्रॉन्स advantages ज्यादा है, disadvantages कम है, but है. Okay, the first is cost. Okay, first is cost. The first disadvantages of DBMS का फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट. ठीक है, हमको उसको लिए ज्यादा पे करना पड़ता है. ठीक है, जो कॉस्ट जो है डीबीएमएस कॉस्ट ज्यादा है उसको मेंटेन करने के लिए. डीबीएमएस लाइसेंस वर्जन यूज करने के लिए बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट वी हैव टू पे मोर कॉस्ट, हमको ज्यादा कॉस्ट उसको पे करना पड़ता है. ठीक है, तो दैट इज डिसएडवांटेज. इतना सीरियस डिसएडवांटेज नहीं है बट है, कॉस्ट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस. द सेकंड इज इलेक्ट्रिक फेलियर और करप्टेड डेटाबेस. द सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिक फेलियर. ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है मतलब ऑन कंप्यूटर भी ही होगा, बट इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया, सपोज मैं डेटाबेस क्रिएट करी होगा, मैं सेव करना भूल गई, बैकअप का फैसिलिटी अवेलेबल है बट वो बैकअप का फैसिलिटी के लिए मैंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मतलब बैकअप लेना मैं भूल गई. ओके, तो पावर ऑफ हो गया एकदम से, तो मेरा डेटा तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट ही हो जाएगा. लास्टली वो तो सॉफ्टवेयर ही इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है. जो सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली हम लोग सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके उसको यूज करेंगे. अगर सिस्टम फेल हो गया, ओके, सिस्टम फेल हो गया तो ऑब्वियसली हमारा डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, पीपीटी बना रहे हो, तो कुछ भी काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, अगर आपने सेव नहीं किया, सेव का फंक्शन अवेलेबल है बट आपने सेव ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा. तो दैट इज डिसएडवांटेज. ये भी इतना कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है बट है. एंड द लास्ट इज ट्रेन्ड स्टाफ रिक्वायर्ड. ट्रेन्ड स्टाफ रिक्वायर्ड. ओके, दिस इज अ डिसएडवांटेज, मतलब नॉट एनीवन कैन नॉट यूज और एक्सेस दी डीबीएमएस. कोई भी आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता. ट्रेन स्टाफ जिसको पता है, आईटी स्टूडेंट या तो आईटी पर्सन्स जिसको भी नॉलेज है डेटाबेस का, ओनली दे कैन यूज दी डेटाबेस, ओनली दे कैन हैंडल दी डेटाबेस. आपको अभी नाउ मैंने आपको थियरी बताया कि व्हाट इज डेटाबेस, बट आपको मैं ट्रेन नहीं करूंगी, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाऊंगी, आपको नहीं दिखाऊंगी, देन यू कैन नॉट यूज दी डीबीएमएस. जस्ट थियरी पढ़ा करूंगी बट मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि यस प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है. मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगी, मैं आपको प्रैक्टिकल्स नहीं करवाऊंगी, देन यू विल नॉट गेट द आइडिया कि हाउ टू यूज द डीबीएमएस. कंसेप्ट पता है, थियरी पता है, बट अगर मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं करवाऊंगी तो यू कैन नॉट यूज द डीबीएमएस. सो दैट इज अ disadvantages. So all are the disadvantages of DBMS. Clear?
इतना मेजर कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट आपको याद रखना है, आपको ये ऐसे याद रखना है कि व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, द कॉस्ट, इलेक्ट्रिक फेलियर और करप्टेड डेटाबेस, एंड ओनली ट्रेन्ड स्टाफ रिक्वायर्ड। ओके, मतलब ओनली ट्रेन्ड स्टाफ, स्किल पर्सन्स कैन एक्सेस द डीबीएमएस। इसके पहले आपको जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये डीबीएमएस होता क्या है, कैसे परफॉर्म करना है। अगर मैं आपको करवाऊंगी नहीं तो यू कैन नॉट यूज द डीबीएमएस। ओके, दैट इज द डिसएडवांटेजेस। क्लियर? Clear advantages and disadvantages of DBMS? यस। Okay. चलो, कौन बताएगा मुझे advantages of DBMS जल्दी से? Who will tell? Who will tell advantages of DBMS? Okay. चलो, हाँ बोलो बोलो, जितना याद है उतना। ये जो हमने देखा ना इसके पहले वाले स्लाइड्स में, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, जस्ट गिव द नेम ऑफ दैट। Reducing data redundancy, Yes. sharing of data, Hmm. data integrity, Hmm. data security, Hmm. data consistency, backup and recovery. वेरी गुड, गुड। ओके, आपको ऐसे उसको याद रखना है शॉर्ट में, ठीक है? ऑनलाइन होगा तो भी आपको ऐसे तो इसको याद रखना ही है। ओके, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा रिडंडेंसी? डेटा डुप्लीकेशन। यस, वेरी गुड। ओके, तो डेटा डुप्लीकेशन कैसे होना चाहिए? डीबीएमएस क्या करता है? डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है कि इंक्रीज करता है? रिड्यूस कर। रिड्यूस करता है। Reduce वेरी गुड। ओके, व्हाट इज डेटा कंसिस्टेंसी? सेम सेम डेटा टाइप। हाँ, सेम डेटा टाइप। सेम सेम क्या बोला? यस यस, बोलो बोलो। सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप नहीं, सेम डेटा टाइप्स नहीं। यस, और कोई ट्राई करेगा डेटा कंसिस्टेंसी? डेटा कंसिस्टेंसी और कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज डेटा कंसिस्टेंसी? यस, ज्योति। ओके, मल्टीपल प्लेस में सेम डेटा कॉपी। यस, वेरी गुड ज्योति, गुड। ओके, डेटा कंसिस्टेंसी मतलब क्या? if you are storing the same data in multiple places, okay, in multiple copies, at that time the data should be same in all the places. okay, अगर अलग अलग जगह पे आपने स्टूडेंट का डेटा या तो कोई भी डेटा पे स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो वो हर एक जगह पे स्टूडेंट का डेटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है डेटा कंसिस्टेंसी, तो उसको जरा समझो। डेटा टाइप मैंने वर्ड यूज नहीं किया, ओके, सरफराज। डेटा टाइप का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस बना रही हूँ। ओके, मैं एक डेटाबेस मैंने आपका क्रिएट किया है फॉर दी डीबीएमएस, ये सब्जेक्ट के लिए आई एम क्रिएटिंग दी डेटाबेस। ठीक है, जिसमें मैंने आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका क्लास का रोल नंबर, नेम, आईडी, फोन नंबर मैंने स्टोर किया, मैंने एक टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया। ठीक है, देन और एक मैं टेबल बना रही हूँ टेस्ट करके, डेटाबेस टेस्ट करके मैं डेटाबेस बना रही हूँ। ठीक है, टेस्ट टेबल बना रही हूँ, तो वो टेस्ट में जो जो भी मैं टेस्ट लूंगी उसका डेटा प्लस स्टूडेंट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है एंड स्टूडेंट का रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, तो वो दी टेबल्स आर डिफरेंट, दोनों टेबल क्या है? अलग अलग है, बट दोनों टेबल्स में डेटा में भी सेम, क्योंकि जो टेस्ट में अवेलेबल है वो स्टूडेंट्स का नेम किस में होगा? टेस्ट टेबल में होगा। तो फॉर एग्जाम्पल सरफराज जो है वो उसका एंट्री कौन से टेबल में है? स्टूडेंट टेबल में। जो मैंने डेटाबेस में मेरे सब्जेक्ट के लिए टेबल बनाया उसमें सरफराज का एंट्री होगा। अगर सरफराज टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो उसका एंट्री कहाँ पे होगा? टेस्ट के टेबल में भी होगा। ठीक है, मतलब एक ही स्टूडेंट का एंट्री दो टेबल में, दो टेबल में एंट्री है, तो सरफराज का नेम, आईडी, ठीक है, वो सेम होना चाहिए दोनों टेबल में। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। फिर ऐसे नहीं कि खान सरफराज है तो इसमें मैं शेख सरफराज लिख रही हूँ, तो उसका रोल नंबर इसमें 10 है तो उसमें मैं 2 लिख रही हूँ, वैसे नहीं। ओके, स्टूडेंट का मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल जगह पे मैं सरफराज का एंट्री कर रही हूँ, तो जितनी भी जगह पे सरफराज का एंट्री होगा मल्टीपल टेबल्स में, उसमें सरफराज का नेम, रोल नंबर, आईडी, जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इट्स कॉल्ड द डेटा कंसिस्टेंसी। तो ये मल्टीपल टेबल्स में डेटा सेम होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फॉरेन की है, वी हैव द फॉरेन की कंसेप्ट थ्रू विच वी कैन
डेटा चेक करेंगे कि ये इसके दोनों टेबल में सेम है कि नहीं, तो हम प्रैक्टिकली करेंगे। एट दैट टाइम आई विल टेल यू कि उसको डेटा कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जब प्रैक्टिकली कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कंसिस्टेंसी है। ओके, यस, गुड। एंड डिसएडवांटेजेस, व्हिच आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस? जल्दी से बताओ डिसएडवांटेजेस क्या है? Cost. Yes, cost, electricity and skilled person. Okay, skilled person या तो training staff required, जो आपको suitable, जो याद रखना है, you can remember. Okay, so this are the basics of DBMS हम लोगों ने पढ़ा. Okay, now next topic है that is, yes, Jyoti, correct. Okay, yes, now next जो है that is architecture of DBMS. एक मिनट, क्या हो गया इसको? तो ये जो रिकॉर्डिंग्स है, जो स्लाइड्स है, आई विल पोस्ट टू योर गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम में मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो ये बेसिक्स पढ़ा हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज डेटाबेस आर्किटेक्चर। ओके, डेटाबेस उसका आर्किटेक्चर कैसा है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर मतलब जस्ट ऐसे मुझे बताओ, व्हाट इज आर्किटेक्चर? व्हाट इज आर्किटेक्चर? जस्ट ऐसे सिंपल वर्ड्स में मुझे बताओ, आर्किटेक्चर मतलब क्या? आपको क्या समझ में आता है व्हेन यू हर्ड द वर्ड आर्किटेक्चर? आप उसको कैसे बोलोगे कि ये आर्किटेक्चर है ये? चलो बताओ, जैसे आपको ये स्टूडेंट प्लीज नाउ बी फ्रैंक, ओके, बी एक्टिव इन द क्लास, डिस्कशन करें। ओके, तो अगर आंसर रॉन्ग भी हो रहा है तो उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके प्रीवियस लेक्चर्स में सब, जिसमें हम लोग डिस्कशन करते थे। तो ऐसे नहीं कि करेक्ट आंसर ही आना चाहिए, रॉन्ग आंसर होगा तो भी चलेगा, उसको भी मैं अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि आप आंसर तो दे रहे हो। ओके, जो आपको समझ में आ रहा है। डिजाइन एंड बिल्डिंग, यस, Designing and यस यस, डिजाइन करना, ठीक है, आर्किटेक्चर, यस, कंस्ट्रक्शन, यस पूर्णिमा, कंस्ट्रक्शन यू कैन से कि डीबीएमएस कैसा उसको आर्किटेक्ट किया, उसका डिजाइन कैसा है डीबीएमएस का। ठीक है, तो वो हमको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसके पहले वाले स्लाइड्स में हमने बेसिक देखा डेटाबेस के बारे में, व्हाट इज डेटाबेस, एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, देन एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, प्लीज रिजॉइन स्टूडेंट्स, ओके, रिजॉइन करो, रिजॉइन करना। लेक्चर्स विल बी एंडेड विद इन द few seconds, so please rejoin. Okay, architecture, the design of DBMS depends on its architectures. Okay, architectures हम लोग डिफाइन करते हैं। जो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स है ना, वो भी घर बनाने, बिल्डिंग बनाने से पहले दे विल मेक द आर्किटेक्चर्स। ठीक है, वो आर्किटेक्चर्स बनाते हैं। इट कैन बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज और हायरार्चिकल। ओके, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या है मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस कैन बी सीन एज आइदर सिंगल टायर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर्स। ठीक है, जो आर्किटेक्चर है उसको डिजाइन किया इन लेयर्स में डिजाइन किया है। ये सिंगल टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर्स। ओके, आर्किटेक्चर मतलब क्या? आपके सिस्टम डीबीएमएस का जो सिस्टम है उसको